जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरंगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Hey, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaura Hari. Patita Pavana, Patita Pavana, Patita Pavana, Gaura Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai, Nitai, Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सब बोलिए Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey!
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य आशुतोष श्रीमती गोस्वामी भाई चरण भक्तिदान स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंतर श्रीमद् भागवतम महापुराण की अनंत कुटी वैष्णव वृंद की ओ ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी सब भक्तहरुलाई जय जयकार की हो जय गौर प्रेमानंदे हरे हरे जय श्री गुरु गौरांग जय शिल प्रभुपाद की जय Hey Krishna. So it's a great privilege for us to welcome amongst us our own Patri Prabhu. Patri Prabhu is well known everywhere, but still there are some of you who have just joined the temple recently. You might want to know more about him. His Grace Patri Prabhu serves as one of the co-regional secretaries of Nepal. He was recently conferred with the Jana Seva Prabal Shri Award by the Nepal government for wonderful services rendered to the society. Apart from that, he is a multilinguist, he is a multi-musician, he can play innumerable number of instruments, he is a very good sketcher and painter, he is a PhD, and of course, he is a great source of inspiration across the world for several devotees, even wonderful humanitarian work that was rendered during the famous or infamous Nepal earthquakes. So, it's been a great privilege for us to have Patri Prabhu visiting Delhi, but not so often as before. So we want to request him to come more often. His Grace Patri Prabhu ki शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कौन सा भाषा में क्लास देना आज? हिंदी, इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश। Okay. I'll give class in Ukrainian or in Russian. English? Hindi? English. Okay. Okay. Bengali ma. Gaudiya Sampradaya, Bengali. যদি ভগবানের কৃপা হবে তাহলে সব কিছু হতে পারি। कथंचन स्मृति यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवित विस्मृति विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामितम। एक श्लोक আছে চৈতন্য চরিতামৃততে ভালো। যদি তো আপনি চৈতন্য महाप्रभुর स्मरण করবেন भगवान कृपा করবে एकदम। मैं आपके हिंदी में बात करूंगा। जब अगर आप भगवान का स्मरण करेंगे, चैतन्य महाप्रभु का जो स्मरण करते हैं, उनको सबसे बड़ा कठिन काम बहुत आसानी हो जाता है। अंगुली का काम है, बाएं हाथ का खेल। लेकिन जो भगवान को नहीं स्मरण करते हैं, विपरीतम स्यात्, बहुत सारे छोटा काम जो है ना, बहुत बड़ा पहाड़, एवरेस्ट जैसा पहाड़ हो जाएगा, मेरू पहाड़ जैसा हो जाएगा, बहुत मुश्किल। कथन छन स्मृति यस्मिन दुष्करम सुकरम भावित, जो बहुत मुश्किल है काम है,
बहुत सुखपूर्वक हो जाते हैं, सुसुखम कर, तो मजा मजा आ जाते हैं, है ना। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु को भूल जाते हैं वो सब कुछ होता। एक बार इस होलीनेस इंद्रजुम्न महाराज आ गया, यहाँ भी हमारे नेपाल में आ गया कल, तो क्लास देता था, एक बार क्लास दिया, शुरू किया हरे कृष्ण, तो उन्होंने एक बार हमारा इस्कॉन के अध्यक्ष निवेदन किया, महाराज थोड़ा क्लास दीजिए आज, क्लास भागवतम क्लास। ठीक है, तो महाराज बैठ गया, जो विदेश का काम है, विदेश का कहानी, तो वो बैठ गया और कीर्तन जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, और कीर्तन शुरू हो गया। भक्त लोग कीर्तन करते करते 15 मिनट से आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो टेम्पल प्रेसिडेंट थोड़ा चिंतित हो गया, थोड़ा विचलित हो गया, भाई महाराज क्लास, ब्रेकफास्ट अभी क्लास कब होगा? 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, कीर्तन चल रहे। तो अध्यक्ष ने ऐसा बैठ रहे, क्लास महाराज, क्लास भागवतम क्लास। और महाराज क्लास का नाम क्या बोला? ये मेरा क्लास था। हाँ, यस्या संकीर्तना नामनम सर्व पाप प्रनाशनम प्रणाम दुख सामानस्तम प्रणाम हरिम परम। ये विराम है ना, संपूर्ण शास्त्र का जो है विराम, अंतिम सार, श्रुति सारमेकम यम स्वानुभावम अखिलम श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतितीर्षतम तमोन्धम संसारिणम करुणया पुराण गुह्यम। पुराण गुह्य में मतलब गुह्य ज्ञान है, सार, यम स्व श्रुति सारमेकम। सार क्या है? सार यस्या संकीर्तना नाम सर्व पाप प्रनाशनम तम प्रणामी हरिम परम। दुर्गम शिवम गणेशम हनुमानम ठीक है, लेकिन हरिम परम ये लोग समझते नहीं। क्या? नते विदु स्वर्थ गतिम ही विष्णु दुराशय ही बहिरथमानिना अंधायंथंद रूपनीयमानस तिपिशतंत्र मुर्दम निबंध। एक अंडा दूसरा अंडे को पकड़ करके दोनों कुआं में गिर जाता है, कोई भविष्य है ही नहीं। चाहे कोई भी हो, चाहे जीरो चाहे हीरो, चाहे राजा चाहे प्रजा, चाहे बाइडेन चाहे पुतिन चाहे जेलेंस्की चाहे कोई भी हो, अगर भगवान जिस भजन में राम जी का नाम ना हो उसी भजन को गाना नहीं चाहिए। ये वास्तव में शास्त्र 3 स्कंद भागवतम का एक सार है। नहीं यत कर्म धर्मया ना विरगाय कल्पते, नहीं यत तीर्थ सेवाया जीवन अपि मृत्यु ही सहा। अगर हमारा कर्म जो है हमको धर्म तक नहीं पहुंचा देते, कर्म बेकार है, श्रमाय वही केवलम। अगर कर्म करते 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 धर्म भी मिल गया, बहुत सारे प्रकार के धर्म होता है, विधर्म अधर्म बहुत सारा, हाँ, लेकिन धर्म करते 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 वैराग्य नहीं आते। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुरुष। अगर ये वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य हृदय में नहीं होता है, वो धर्म बेकार है। कैसे धर्म है? भगवत गीता का ज्ञान ही, भगवत गीता नाम मैं सदैव बोलता हूँ, भगवत गीता जब ले लीजिए पढ़ते ना हम लोग ना, भगवत गीता यथारूप, आजकल तो बहुत गीता हो गया, भगवत गीता जैसा था भगवत गीता जैसा होगा, भगवत गीता यथार्थ, हाँ, यथारूप नहीं। बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसमें पढ़ते पढ़ते कृष्ण जी है ही नहीं उधर। ओम निराकार निर्गुण शांति ओम समथिंग, भगवान को ही हटा दिया, बताइए। लेकिन भगवत गीता का सार क्या है? भगवत गीता का नाम में ही सार है, श्रुति सारम एकम। क्या? गीता 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 बोलते रहो, क्या होगा? गीता 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 गी सर्वधर्मं परित्याज्य ममेकं शरणं व्रज। गीता गीता का सार गीता का नाम है, लेकिन वो पश्यन अपि न पश्यति, वो दिखते नहीं। क्या क्या अर्थ निकलते हैं। अगर वो हमको धर्म वैराग्य नहीं देते हैं, धर्म कैसे बिगाड़ है धर्म। अगर वैराग्य भी प्राप्त हुआ ओम 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 गुफा बाबा, त्यागी वैराही महामंडलेश्वर पागल बाबा बहुत देख लिया मैं। 1108 महामंडलेश्वर त्यागी महाराज पागल बाबा, शुरू से होना चाहिए पागल बाबा और बाकी सब। प्रमत्त कुरुते विकारम प्रकृष्ट रूपिना मत्तः, पागल शास्त्र बोलते हैं।
लेकिन वो वास्तव में जो है, अगर हमको वैराग्य भी मिल गया, अगर भक्तों को सेवा करने के लिए मौका नहीं मिलता है, अगर हाँ अप्राणस्या ही देहस्या, अगर भक्ति है ही नहीं तो त्याग वैराग्य क्या है। हाँ बंदर भी वैरागी है, बहुत सारे वैरागी है। हमको अंत में जो है प्रेम पुमर्थम, हमको प्रेम चाहिए भगवान के प्रति। इसलिए हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं रोज, नित्यम भागवतम सेवया, तीर्थ सेवया, किताब भागवतम और भक्त भागवतम। तो इसी प्रकार हम लोग क्यों पढ़ते हैं उसको, ये कोई जबरदस्त टीका मरने के लिए सुनना पड़ता है, क्या करें, अभी तो भूख लग गया, बैठना पड़ता है, क्या अब जल्दी क्लास करो, खत्म कर दो, हो गया प्रसाद। प्रसाद ये हमारा प्रसाद है। तुलय मलविनपि न स्वर्गम ना पुनर्भवा भगवत संग संगस्या मर्थ्यानम किमुतसी सहा। हम लोग स्वर्ग से जो है तुलना नहीं कर सकते, ये श्लोक 2 बार भागवत में बताया गया है। भक्तों का संग बहुत इतना दुर्लभ चीज है, नहीं मिलता है ऐसा मौका बारंबार। इसलिए हम लोग आज आपके साथ चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण 6 स्कंद अध्याय 8 है ना, श्लोक संख्या 1 to 12, 1 से 12 तक। श्रीराज उवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहन् रिपुसैनिकन् क्रीडन्निवा विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममख्याहि वर्मा नारायणात्मकम् यथा तातायिनः शत्रुन् येना गुप्तो जयन् मृधे। हिंदी किताब दे दीजिए ना, हिंदी तो पढ़ना पड़ेगा ना, आप लोग संस्कृत समझते हैं। किंचित किंचित जानति संस्कृतम, अनुवाद तो करना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने श्रील शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे प्रभु कृपा करके मुझे वहां विष्णु मंत्र कवच बताइए जिससे राजा इंद्र की रक्षा हो सकी और यहां अपने शत्रुओं को उनके वाहनों सहित परास्त करके तीनों को लोगों की ऐश्वर्य का उपभोग कर सका। कृपया मुझे वहां नारायण का कवच बताइए जिसके द्वारा इंद्र ने युद्ध में अपने उन शत्रुओं को हराकर सफलता प्राप्त की जो उसे मरने का प्रयत्न कर रहे थे। समझ गया ना? मैं भी समझ गया। ठीक है, ऐसे कम करिए अब सूरा। ठीक है, फटाफट पढ़िए तो अनुवाद, पूरा क्लास नहीं श्लोक में पढ़े। दूसरा तीसरा 4 से फटाफट। हाँ ना 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 ना, अनुवाद है ही नहीं उधर, आप उसको पढ़िए। दूसरा तीसरा 4 नंबर सर 12 श्लोक तक पढ़ना चाहिए, कोई तात्पर्य नहीं है। ओनली श्लोकास। अनुवाद, हाँ संस्कृत अनुवाद। ओके, अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ये तीसरे श्लोक का अनुवाद है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के द्वारा पुरोहित के रूप में नियुक्त विश्व रूप से नारायण कवच के संबंध में पूछा।
विश्वरूप द्वारा दिए गए उत्तर को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। अब श्लोक संख्या 4, 5 और 6 एक साथ, उनका अनुवाद इस प्रकार है। विश्वरूप ने कहा, किसी प्रकार के भय का अवसर उपस्थित होने पर मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने हाथ पांव धोएं और तब यह मंत्र जप कर आचमन करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरश्चुचिः श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तब उसे चाहिए कि कुछ घास को छूकर शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूर्णतया शुद्ध होने पर उसे चाहिए कि 8 शब्दों वाले मंत्र को अपने शरीर के दाहिनी ओर के 8 भागों में छुआएं और 12 शब्दों वाले मंत्र को हाथों में छुआएं। फिर नारायण कवच से स्वयं को इस प्रकार बांधें। पहले 8 शब्दों वाले मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए प्रथम शब्द ओम या प्रणव के प्रारंभ करके अपने हाथों से अपने शरीर के 8 अंगों का स्पर्श करें। पहले दोनों पांव छुएं, फिर क्रमशः घुटने, जांघ, पेट, हृदय, छाती, मुंह तथा सिर को छुएं। इसके बाद उल्टे क्रम से मंत्र का जप करें, अर्थात अंतिम शब्द या से प्रारंभ करें और अपने शरीर के अंगों को भी उल्टे क्रम से छुएं। ये दोनों विधियां क्रमशः उत्पत्ति न्यास तथा संहार न्यास कहलाती हैं। अब श्लोक संख्या 7। तब उसे चाहिए कि 12 अक्षरों वाले मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इस मंत्र के 12 अक्षरों को दाहिने हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करके बाएं हाथ की तर्जनी तक प्रत्येक अंगुली के छोर पर प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करते हुए रखें। शेष 4 अक्षरों को अंगूठों के पोरों पर रखें। अब श्लोक संख्या 8, 9 और 10 एक साथ है, उनका अनुवाद। फिर उसे 6 अक्षरों वाला मंत्र अथवा ओम विष्णवे नमः जपना चाहिए और ओम को अपने हृदय पर, वी को शिरोभाग पर, श को भौहों के मध्य, ण को चोटी पर तथा वे को नेत्रों के मध्य रखना चाहिए। तब मंत्र जप करता न अक्षर को अपने शरीर के समस्त जोड़ों पर रखें और म अक्षर को अस्त्र के रूप में ध्यान धरें। इस प्रकार वह साक्षात मंत्र हो जाएगा। तत्पश्चात उसे चाहिए कि अंतिम शब्द म में विसर्ग लगाकर मह अस्त्राय भट्ट इस मंत्र का जप पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में करें। इस प्रकार सभी दिशाएं इस मंत्र के सुरक्षा कवच से बंध जाएंगी। श्लोक संख्या 11। इस प्रकार जप कर लेने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह 6 ऐश्वर्यों से युक्त तथा ध्यान करने योग्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने आप को गुण की दृष्टि से समान समझें। तब उसे चाहिए कि वह निम्नलिखित नारायण कवच अर्थात भगवान श्री नारायण की सुरक्षा स्तुति का जप करें। अब श्लोक संख्या 12। परमेश्वर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर आसीन है और अपने चरण कमल से उसका स्पर्श कर रहे हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, तीर, धनुष तथा पाश धारण किए हैं। ऐसे 8 भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी समय मेरी रक्षा करें। वे सर्वशक्तिमान हैं क्योंकि वे 8 योग शक्तियों अणिमा, लघिमा इत्यादि से समन्वित हैं। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ईश्वर से तादात्म्य का चिंतन अहंग्रोपासना कहलाती है। इस उपासना से कोई ईश्वर नहीं बन जाता, किंतु गुणों की दृष्टि से वह अपने आप को परमेश्वर के समान मानता है। यह मानकर कि जिस प्रकार नदी का जल समुद्र के जल के समान है, उसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा परमात्मा का धर्म सम है। आत्मा परमात्मा का धर्म सम है। उसे इस श्लोक में बताई विधि से परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। जीवात्मा सदैव परमेश्वर के अधीन है। फलतः उनका कर्तव्य यह है कि वे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए श्री भगवान से कृपा याचना करें। श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
यं स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकमाध्यात्मदीपमतिथितीर्षतं तमुन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनं मुखं करोति वाचालं फल्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणे अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायतक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इन चैतन्य भागवत एक श्लोक है, भक्ति योग धाम भक्ति ए कृष्ण नाम स्मरणा क्रंदान। ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने बताया जब अद्वैताचार्य एक विश्वरूप दिखना चाहता था। भगवान का जो है सर्वशक्तिशाली रूप जो है इसी भौतिक संसार में विश्वरूप। प्रभुपाद जी बताते हैं अगर कोई भगवान है तो दिखाओ अपना विश्वरूप। तो अद्वैताचार्य समझ गया भाई ठीक है आप भगवान तो है जरूर, थोड़ा कुछ बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा विश्वरूप दिखाइए ना थोड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत ऑडिटोरियम में जो है उसको केवल एक बैठा दिया अद्वैताचार्य, अभी दिखाते हैं आपको। उस समय नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में घूम रहे थे, अवधूत नित्यानंद है। उन्होंने देखा कुछ सिनेमा होने वाला है, मेरे को बुलाया ही नहीं, जबरदस्ती गया, उसमें दौड़ के गया अद्वैताचार्य के घर में। और जब भी पहुंच गया अद्वैताचार्य दरवाजा घुस गया। वो तैयारी किया था, प्रतीक्षा किया था उनको, ये जल्दी जाइए, हम लोग शुरू नहीं कर रहे हैं, आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो आया और दोनों को जो है विश्वरूप बाबा विश्वरूप दिखाया। और विश्वरूप को देखकर जो है अद्वैताचार्य और नित्यानंद नचने लगा, पागल की तरह नचने लगा, आलिंगन करने लगा, हाँ नचने घूमने। तब जो है भक्ति योग धान, ये क्या मिल गया? कृष्ण जी का स्मरण, सततम स्मर्तम यम विष्णु भक्ति ए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदाना। सो भगवान को स्मरण करना बस। अगर विस्मृतम स्यात् विपरीतम स्यात् तो गड़बड़ हो जाएगा। स्मरण करना ऐसे संकीर्त की चैतन्य स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं परीक्षित महाराज, अभी देखिए उनको श्राप मिल गया 7 दिन के अंदर सीताराम शरीर और क्या, हाँ सीताराम होने वाला है। और तुरंत अपना मुकुट छोड़ के मैनेजमेंट किसी को दूसरे को दे दिया, अपना पुत्र को दे दिया। गड़बड़ होता है ना, कभी कभी ऐसे गड़बड़ होता है इस संसार में। जो नया पीढ़ी आने वाला वो प्रचार करते वो थोड़ा रजगुणी प्रचार उत्साहमयी, और दूसरे को देते हैं प्रचार। और जो बूढ़ा लोग जो उसको थोड़ा शरीर 50 वरम रजित 50 साल के बाद थोड़ा त्याग करके जो है ओम सत्वगुणी अपना अनुभव प्रदान करना पड़ता है, नहीं मैनेजमेंट करते हैं। कभी देखिए आजकल राजा, दुनिया का राजा इतना बूढ़ा लोग हो गया, चाहे कोई भी देश ले लीजिए। नया केवल लंदन में अभी हो गया, बाकी सब लोग बहुत कितना वर्ष हो गया, अभी सफेद कपाल हो गया, वो संसार चला रहे हैं। और जो युग जो है वो युवा लोग होता है उसको मौका ही नहीं मिलता है। और परिणाम क्या? परिस्फलिन परिचय आती, फल देखो। बहुत बड़ा खतरनाक परिस्थिति अभी संसार में। इसलिए बस अभी कवच चाहिए संसार के लिए। कौन सा कवच? तो परीक्षित महाराज पूछ रहे मेरे को ये कवच बता दीजिए, क्योंकि अंतकाल में अंताकाले स्मरम मुक्त वाकले वाला, मेरे को क्या, मेरे को भक्ति चाहिए। मेरे को कौन सा कवच ऐसा है जो मेरे को सुरक्षा कर सकते हैं? परीक्षित महाराज नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे को भगवान का स्मरण करना है, भगवान के प्रति आसक्ति है।
उन्होंने यही प्रार्थना किया, अगर आप मेरे को कोई भी आशीर्वाद देना चाहते हैं संत महात्मा जी लोग, मेरे को एक आशीर्वाद दीजिए, मेरे को 3 चीज चाहिए। अगर मेरे को फिर जन्म लेना होगा, अगर फिर पुनश्च भूयत, अगर मेरे को फिर जन्म लेना पड़ेगा, मेरे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए, भगवान को कभी भूल ना जाए। पुनश्च भूय भगवाचनन्ते प्रति प्रसंगस्य तत् आश्रयेषु महत्सुयम यम उपयामि सृष्टि मैत्र अस्तु विश्वस्य नमो द्विजेभ्यः। मेरे को 3 चीज चाहिए। भक्ता लोग, साधु महाराज लोग, मेरे को भगवान के प्रति आसक्ति, भक्तों का संग और संपूर्ण जीव के साथ मित्रता चाहिए। मेरे को झगड़ा नहीं करना चाहिए मेरे किसी से। इसीलिए ऐसा कवच दीजिए मेरे को, जो मेरे को पूरा जीवन प्राण सुरक्षा कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उनको सब सिखाते हैं। और क्यों उसको कहते हैं न्यास कहते हैं, हमारा पंचरत्न का विधि के अनुसार। और सनातन गोस्वामी समझाते हैं हमको, न्यास होता है ना, भगवान का नाम लेते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। हम क्यों भगवान का नाम लेते हैं? अंदर पहले शरीर को जो है थोड़ा तैयारी करना चाहिए। जैसा हम लोग आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक हम लोग आध्यात्मिक नहीं है, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते जब तक हम लोग खुद आध्यात्मिक नहीं हुआ थोड़ा थोड़ा। क्योंकि आप देखा शायद रेडियो स्टेशन होता है ना, स्पीकिंग BBC इन स्पीकिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक हमारा अंटेना नहीं पकड़ लेगा ये तरंगा, तब हम लोग मायरा तरंगा पकड़ लेते हैं। कौन सा रेडियो स्टेशन पकड़ लेते हैं पता ही नहीं। आजकल तो पूरा दुनिया मुट्ठी में, कौन सा स्टेशन। आजकल कुत्ता बिल्ली भी मोबाइल के साथ घूमते रहते हैं, कौन सा तरंगा पकड़ लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं, हमको प्रचार करना चाहिए, यार देह तरह का कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा है। लेकिन उसके बाद बोला उसी ब्राह्मण को, गुरुमा को बोला, देखिए आप मेरे को स्मरण करोगे, मायरा तरंगा आपको नहीं पकड़ेगा, और क्या मिलेगा? हाँ, मेरा मोरा संगा, आपको मेरा संगा, मेरा तरंगा पकड़ लेगा, आपको हरे कृष्ण तरंगा पकड़ लेगा। इसलिए हमको हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। तो वो पूछ रहे हैं मेरे को कोई सा कवच, वो संपूर्ण शरीर में नारायण तो उसके उल्टा सीधा उल्टा करना पड़ता है ना, बहुत सारे अंग में तो लगाना, तब हमारा शरीर थोड़ा शुद्ध हो गया, शुद्धि के लिए। उसके बाद जो हमारा पास प्राण, वायु, हवा, वो भी शुद्ध करना पड़ता है। उसके बाद मन से पूजा करना पड़ता है भगवान को, जो है थोड़ा सा मन शुद्ध हो जाएगा। मनस एक, वचन एक, कर्मण एक इति ब्राह्मणः। मनसा अन्य, वचन अन्य, कर्मण अन्य ये कृपणः। अगर सोचते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ, मुख में दम बहाल में चोरी, और करते हैं कुछ। तो कलयुग का प्रभाव क्या है? विभद्र रुचि, सब लोग जो है उल्टा हो गया, और माया का प्रभाव में जो है एकदम माया चपतेरा धोरे ना, हबु दुबु भाई भक्तिवंत को धूप गए सब माया में। तो हमको कौन सा कवच चाहिए? भगवान का कवच चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान के कवच मतलब बोलते रहे, अक्षर तो सब लोग बोलते हैं, लिप्स ओट, और 20 साल के बाद बड़ा ओट हो जाता है। जिम, ओट का जिम होता है, हृदय से नहीं बोलते हैं, लिप से होते हैं ना, ओट से करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? वो हृदय में ये प्रवेश होना चाहिए, मंत्र अर्थ। और ये कैसे आते हैं? हमको गुरु द्वारा। तो भगवान और भगवान का भक्ता, हम लोग भाव एक ही है, लेकिन हमने माया दास, माया जाना। मैं अभी प्रभुपाद जी का लेटर पढ़ा एक अधिकारी के लिए, वो लिख रहे थे आजकल वो हरिजाना आंदोलन, महात्मा गांधी जी के जो हरिजाना आंदोलन, अभी आगे चलना चाहिए, लेकिन हरिजान लोगों के जो व्यक्ति जो भगवान का हरि का जान है, उसको आंदोलन करवाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए उसको। तो हम लोग क्यों कहते हैं भगवान और भक्ता एक साथ होना चाहिए? एक साथ मतलब क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं भागवतम में, भगवान का इच्छा और हमारा इच्छा एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो लिंग हो गया, ओम निराकार गया बेचारा रोशनी में, कहाँ गया पता नहीं न रहेगा बस, न बचेगा बांसुरी गया,
नहीं, ये गलत है। लोग बोलते, ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में जानते हैं मोक्ष। मोक्ष के बाद क्या करेंगे पता नहीं, क्या करेंगे, मोक्ष गया। मोक्ष के बाद ही असली काम शुरू हो जाता है, और वही हम लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं ABCD ना, एम, बिहेवियर, कैरेक्टर, डिसिप्लिन, उद्देश्य ही पता ही नहीं है। हिज ग्रेस इंद्र प्रभु बताता था हमको, वो बोला अगर आपका आंख उद्देश्य दिखाई नहीं देते हैं तो पैर कैसे पहुंचाएगा उधर। इफ योर आईज कैन नॉट सी द गोल, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट द लेग्स टू रीच देयर। इसलिए पहले लोगों को जो है उद्देश्य, हमारे जीवन का उद्देश्य, प्रेम पुमार्थम हम, ये उद्देश्य तो हमको समझना चाहिए। जो भगवान और जीवा, भगवान का जो इच्छा होता है और इच्छा का वही इच्छा होना चाहिए, उसको कहते हैं मर्जिंग इन द लॉर्ड, मीन्स टू हैव द सेम डिजायर्स एज द लॉर्ड। उसका सेम वही इच्छा होना चाहिए जो भगवान का इच्छा है। कृष्ण मनोभीष्टा, और कृष्ण जी का प्रतिनिधि गुरु, गुरु का प्रतिनिधि जो है मतलब कौन शिष्य होता है। तो हमारा उद्देश्य वास्तव में यस्यादिवे तथा गुरौ तस्यैत कथिना ह्यर्थः प्रकाशन्ति महात्मनः। एक बार श्रील प्रभुपाद जी पूछा अपना शिष्य उनसे, सबसे सर्वोत्तम श्लोक शास्त्र का कौन सा है। सब लोग बहुत श्लोक मार दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मदीन भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियाः, क्या क्या श्लोक बताया। लेकिन प्रभुपाद जी बोला वो तो जरूरी श्लोक है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ श्लोक यस्यादिवे तथा गुरौ तस्यैत कथिना ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। जो गुरु का और कृष्ण जी का इच्छा समझ गया उसको कहते गुरु मनोभीष्टा। गुरु का मन समझना चाहिए, कृष्ण जी का मन समझना चाहिए और वो ही करना है। एक साधु वृंदावन में, गोवर्धन में, मेरा पुराना दोस्त, बद्रिका आश्रम से पुराना दोस्त, मैं उनको मिला 25 साल पहले बद्रिका आश्रम में। बहुत बड़ा त्यागी वैरागी बाबा, वास्तव में बाबा बहुत सेवा करते हैं वृंदावन में लोगों को। तो मैं उनसे मिलते रहता हूँ। एक बार पहला बार 25 साल बद्रिका आश्रम में मिल गया, तो उन्होंने मैं अभी बताया, मिला उसको, बोला हाँ पत्री जी आपको पता है मेरा क्या उद्देश्य क्या। मैं रोज जब उठता हूँ मैं जाप करता हूँ हरे कृष्णा, और उसके बाद मैं ऐसा अपना अंटेना, उनके पास बड़ा अंटेना लंबा लंबा, हाँ मैं एक बार, समय कम है, बताया गया आपको कहानी। मैं बद्रिका आश्रम में एक गुफा में पहुंच गया एकदम, एक त्यागी वैराशी गंगादास भारती बाबा, बहुत लंबा लंबा बाल कपाल, उसका गुफा में बैठे, कितने 50 साल बैठे हैं उधर गुफा में। मैं उधर गया था और उनसे पूछा बाबा, लंबा कहानी में संक्षिप्त में बताता हूँ, पूरा दिन लगा मेरे को, बहुत भूख लगा मेरे को। पहुंच गया, बैठा था उसमें। अब मैं पूछा बस मेरे पास 5 मिनट से जल्दी वापस आना है मेरे को। बाबा आपका अनुभव क्या है जीवन का, पूरा जीवन का, जो 50 साल बैठ रहे हो, आपका अनुभव क्या है। तो उनके पास एक कार्तिकेय का मूर्ति था गुफा में, कार्तिकेय का मूर्ति, और कार्तिकेय का मुंह में एक छोटा सा कृष्ण जी था। उन्होंने पूरा अंगुला दिखाया, ये कृष्ण जी मेरा अनुभव है। बोलो हरि बोल मधुमक्खी झोल, हाँ युवती मती कोल, बोलो हरि बोल बोले भाई हरि बोल सुपर। जो आपको 50 साल लगा मेरे को प्रभुपाद जी 5 मिनट में सिखाया। हो गया, बताइए। तो एक उदार है वो बद्रिका आश्रम के जो है साधु, वो रधकुंड में और भगवर्धन में कहाँ मिलते हैं उनसे। तो बोलते हैं मैं रोज बैठता हूँ और भगवान का इच्छा समझने के लिए कोशिश करता हूँ, भगवान का क्या इच्छा है भगवान का। और जब पकड़ लेता हूँ उनका इच्छा तुरंत करने के लिए, तुरंत आज ही करता हूँ उनका इच्छा, क्योंकि अगर मैं नहीं पकड़ लूंगा तो कोई दूसरा करेगा। इसलिए मेरा कर्तव्य रोज उनका इच्छा समझना और तुरंत उसको पूरा करना, क्योंकि अगर मैं नहीं पकड़ लूंगा तो कोई दूसरा करेगा। मैं निमित्त होना चाहता हूं भगवान का, इसलिए मैं भक्तों को सेवा करता हूं। अच्छा पॉइंट, मेरे को अच्छा लगा। हमको समझना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, गुरु मनोभीष्टम, गुरु क्या चाहते हैं। लेकिन आजकल लोग बहुत चलक हो गया, सब बहुत IIT MBBS PhD तंत्री मंत्री कहा। गुरु महाराज कौन सा सेवा करूं, गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्ग गैस गुरु महाराज, ट्राई अगेन। गुरु महाराज फिर कोशिश कीजिए, गुरु महाराज फिर कोशिश कीजिए। कौन सा सेवा, किचन में सेवा करो, फिर गलत, और ट्राई कीजिए।
क्योंकि हम लोग चाहते हैं जो हम लोग चाहते हैं, जो गुरु चाहते हैं नहीं चाहते हैं। यही सीक्रेट है, जो हमारा चाहना, जैसे कृष्ण जी के चाहना। और अगर भगवान को इच्छा है तुम नरक चले जाओ, यस सर, मजा आएगा नरक में। ये गोपी भाव है, गोपी भाव यही है। अगर हमको नरक जाना है, हमको धूल ले लीजिए प्रभु, उनके पास दर्द है ना, तो हमको कुछ क्या चाहिए? चरण का धूल, कोई बात नहीं, कितना 1-2 किलो कितना चाहिए ले लो, लेकिन तुम नरक जाओगे, कोई बात नहीं, हम नरक जाने के तैयार है। मजाक उड़ाना आसानी है। आप थोड़ा स्वाहा मानस देह गेह जो किचु मोरे और पिलु तो आपदे नंद किशोरे इतावन जन्म साफल्यम दिहिनाम इह देहेषु प्रणय अर्थैर धिया वाचा श्रेयस अचरणम सदा। समर्पित करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए यह हमारा उद्देश्य है। बहुत उत्साह, बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में 20 साल के बाद बात करते हैं, मिलते हैं आपसे, और 30 साल के बाद फिर मिलेंगे, देखते हैं कौन बच गया। बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत सारे लोग भगवान बुलाते हैं, लेकिन सा महात्मा सुदुर्लभ। एको चंद्रा तमोहंती नचा तरा सहस्रशः। चंद्रमा एक ही है, तारा तो हजारों हजारों है। धन संपत्ति घर में आवे, जय जगदीश हरि। आते रहते हैं लोग। क्या आप थोड़ा कभी कभी बैठे, चुपचाप बैठे, दिखते रहो तमाशा। क्या लोग आते हैं, क्या नाटक करते हैं, क्या क्या, और आज बोलते हैं प्रभु प्रभु ऐसा मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, भूल गया ये भी चाहिए। एक आदमी आ गया मंदिर में और भगवान के पास, इधर राजा परशुराम जी के मंदिर में, हे प्रभु बहुत गंभीर परिस्थिति है, पैसा है ही नहीं घर में, मेरे को 1 लाख चाहिए प्रभु, 1 लाख, बस 1 लाख, मैं वचन देता हूँ, वचन। ठीक है प्रभु परशुराम जी, मैं अगर 1 लाख मिल गया तो 50,000 आपका गुंडी में इधर इस्कॉन मंदिर में डाल देता हूँ, पक्का गारंटी। ठीक है बराबर। दूसरा दिन उनको जो लॉटरी टिकट मिल गया, लॉटरी टिकट, और 50,000 की 50,000 कैश मिल गया उनको। वाह, फिर मंदिर में गया, मंदिर में आ गया, बोला प्रभु मैं जानता था आप बुद्धिमान हैं, लेकिन इतना बुद्धिमान मेरे को मालूम नहीं था, आप अपना 50,000 शुरू से ही ले लिया है क्या? इतना बुद्धिमान। लोगों के पास देने का भाव है ही नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं ना, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स एंड मैन गेट एंड फॉरगेट्स। बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम लोग। कलयुग में 3 चीज भूल जाते हैं ना, दिमाग छोटा, हाँ, प्रयेन अल्पायुषा, बहुत छोटा सा दिमाग भी छोटा होता है, गोल्डन फिश जैसा ना, 2 मिनट का 2 सेकंड का उनका स्मरण होता है। जैसे शीशे का जो है वो एक्वेरियम होने से बुम, वापस जब जा रहे हैं वो भूल गया, बुम वापस जा रहा है वो उसको भूल गया, इसलिए उनको लग रहा है वो सदैव 1000 साल तक आगे जा रहा है, लगता है उनको कोई बाधा है ही नहीं मेरे पास। 3 चीज भूल जाते हैं हम लोग। मैं तो भूल जाता हूं, मैं तो एक टेलीफोन नंबर भूल जाता हूं, 3 चीज। दूसरा ये एक लोगों का नाम भूल जाता हूं, और तीसरा चीज मैं भूल गया। ये जोग है। बहुत लोग टेलीफोन नंबर, आपका नंबर क्या है? 98 लिखता हूं छोटा सा। और आजकल तो बिल्कुल मेमोरी बिल्कुल कम हो गया। इसलिए हमको समझना चाहिए, एक चीज समझना चाहिए, गुरु का आदेश क्या है? सर यस सर, मनमानी नहीं करना चाहिए। गुरु बोलते हैं मेरे को 1 गिलास पानी लेके आओ, और शिष्य बहुत चला, क्योंकि IIT है, IIT पानी से तो दूध अच्छा है, और दूध से खीर फर्स्ट क्लास। गुरु महाराज बहुत थोड़ा कमजोर है, उसको थोड़ा खीर चाहिए ना, तब शरीर स्वस्थ होगा। गुरु महाराज छोड़ दीजिए पानी, खीर ले लीजिए। तू पागल, मेरे को तिलक लगाने के लिए पानी चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत अपना अपना दिमाग लगाते हैं बीच में, लेकिन क्या प्लान है भगवान का समझते ही नहीं हम लोग। इसीलिए अगर हम लोग भालो ना भालो मात्र सेवा कोरी,
हमको ऐसा करना चाहिए, हमको बस जो गुरु आज्ञा दे दिया, यस सर। नरक जाना है, पता नहीं कहाँ है, जीपीएस है आपके पास? नरक है कहाँ? जीपीएस समझते हैं ना गाड़ी में, 300 मीटर्स स्टैंड राइट, है ना? हमारा पास भी जीपीएस है, पता है? गुरु परंपरा सिस्टम जीपीएस, ये असली जीपीएस, गुरु परंपरा सिस्टम, ये जीपीएस है। महाजनो हिनागता सपंतः, जो महाजन ने किया, बहुत बड़ा लोग जैसे शिल प्रभु, हमको तो एक महाजन पर्याप्त है। शिल प्रभुपाद आदेश तो खोल करके बताया, भक्तन सरस्वती सबको ओपन ऑर्डर, यार देह तरह का कृष्ण उपदेश। लेकिन प्रभुपाद जी ने किया, कोई भी नहीं कर सकते हैं जो प्रभुपाद जी ने किया, क्योंकि कर चुका है। हो गया, हमारा इतिहास तो बस चमचा खाने के समय चाहिए ना, वो तो हो गया होगा। दूसरा भी कोई करना चाहते, सॉरी इतिहास गया, अभी हो गया काम। उसी प्रकार जो है भगवान कहते हैं अर्जुन के, अर्जुन तुम मेरा निमित्त हो जाओ, निमित्त मात्रा, आप मेरा निमित्त, इसलिए तुम गुरु का आदेश पालन करो और निमित्त हो जाओ, चाहे जीवन आहुति क्यों नहीं करना चाहिए। ये स्वाहा अर्थात क्या होगा? ये होगा, बहुत फल मिलेगा आपको, लेकिन माँ फल शुकदचनम, उसी फल को मत खाइए, आप मेरा निमित्त केवल। भारत में जब श्रील प्रभुपाद जी पहली बार भारत में आ गया, केवल 20 इंडियन था, 5,500 विदेशी शिष्य था प्रभुपाद जी का, और इंडियन केवल 20, वो भी 15 विदेश में बना हुआ है। हमारा केवल हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज और जयतक महाराज इसी आज्ञा को जो है आगे निवाहन किया पूरा सिर पे। अभी कितने इंडियंस हैं देखिए, असीमित है। चैतन्य महाप्रभु गंगा जी के सीमा थोड़ा बदल गया, विदेश से भारत में आ गया धारा। अभी कितना कितना मंदिर, कितना भक्त लोग, इसी मौका जो है भूलना मत, इसी स्नान करना चाहिए, उसी नदी का जो है चैतन्य महाप्रभु का कृपा का जो धारा होता है उसी स्नान करना चाहिए। जिन खोजा तीन पैया गहरी पानी पेट, किच्चू नहीं पाए बैठे किनारे बेट। जिन खोजा 3 पैया, जो तब उनको जो है अनुभव मोती मिलेगा, कृष्ण भावनामृत का अनुभव मिलेगा। जो रिस्क लेते हैं, जो चुनौती स्वीकार करते हैं और पानी में जाते हैं, किच्चू नहीं पाए बैठे किनारे बेट। अगर हम लोग चुपचाप बैठेंगे, हमारे मुश्किल है, मंदिर में 56 भोग मिलता है, सब ठीक है, शांति शांति, इसलिए मेरे को बाहर नहीं जाना है। बहुत सारे जीव नरक जा रहा है। संसारिनम करुणा, यहाँ करुणा होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, अपनाचरित जीवेरी सिखाओ। इसलिए ये युद्ध का बेस जैसा कैंप, सैनिक लोगों को तैयारी करने के लिए राधा पर्थ सर थी। भगवत जो है ऑफिस में एसी रूम में नहीं बताया गया है, युद्ध क्षेत्र में बताया गया है। इसी प्रकार जो है ये प्रभुपाद जी ने बोला ये माया के लिए चुनौती है, इसलिए हमको कवच चाहिए सुरक्षा के लिए। सैनिक बिना बंदूक, कौन सा सैनिक है? हम लोग एक बार सेमिनार दे दिया इंग्लिश में, शील्ड एंड सोर्ड। भगवान का हाथ में शील्ड एंड सोर्ड था ना, दहाड़ तलवार, पढ़ा ना पहला श्लोक में। भगवान के पास हाथ में जो है वो प्रकट हो गया, और उनके पास जो है एक रस्सी है, एक ढाल है, एक तलवार है, बहुत हाथ में। तो शील्ड मतलब आप लिख लीजिएगा, स्मरण कर लीजिएगा। शील्ड मीन्स श्रद्धा, होली नेम, इंटेलिजेंस, enthusiasm, love and discipline, ये शील्ड है। श्रद्धा, फेथ, श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। मंत्र तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन गुरु का आदेश के प्रति और कृष्ण जी के प्रति कितना श्रद्धा हमारा पास है। सुहृदय निश्चय कृष्ण भक्ति कार्य सर्वकर्म कृत होए, ऐसे पक्का होना चाहिए श्रद्धा। लेकिन हरे कृष्णा, तू पागल, हरे कृष्णा हो गया, फिर चले गया माया में। हमको संग चाहिए, श्रद्धा, होली नेम, नमो चिंतामणि रूपम चैतन्य रास विग्रह, नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्नतम नाम नामिने, भगवान का नाम। उसके बाद इंटेलिजेंस, बुद्धि, ददामि बुद्धि योगम तम, इंटेलिजेंस चाहिए, बुद्धि चाहिए। बुद्धिम यस्या बलम तस्या, थोड़ा
दिमाग आकाश में ठीक है, पैर जमीन में होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। 1 4 1 4 1 श्लोक होमवर्क फॉर यू, अभी चर्चा नहीं करना है। पहला स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 1। प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपना अनुभव क्या चीज है, रियलाइजेशन। व्हाट इज दिस रियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन। जो हमको वो ज्ञान जो हमको परंपरा से मिला, कैसे उसको पैकेज करके आधुनिक समाज में प्रचार करना। अगर अपना अनुभव से प्रचार नहीं करेंगे तो कुछ फल नहीं होगा। पढ़ लीजिएगा, हमको पुराना आचार्य को कम नहीं करना चाहिए, कोई नया नया अर्थ मत निकालना, लेकिन ऐसा पैकेज करना चाहिए काल देश पात्र के अनुसार उसको प्रेजेंट करना चाहिए जो लोग समझ सके। हाँ, इंटेलिजेंस, एंथुजियाज्म, उत्साह, निश्चय, धैर्य, एंथुजियाज्म, लव, प्रेम, प्रीतिपूर्वकम, लव एंड डी, डिसिप्लिन, अनुशासन पक्का होना चाहिए। और सोर्ड तलवार, शास्त्र, विल पावर, दृढ़ता, निश्चय, विल पावर, ऑप्टिमिज्म, सकारात्मक भाव, रिलेशनशिप, संबंध। ईथा तो बहुत हो सकता है, बहुत दीवार जैसा लग रहा है, लेकिन बीच में मसाला नहीं हुआ तो फिर धक्का मारो, घर का न घाट का। बहुत देखा हम लोग, हमको संख्य संबंध भी चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमचति पृच्छति भुंक्ति बुझयति चैवा सद्विधि प्रीति लक्षणम। प्रेम चाहिए भक्तों के बीच में। और डी सोर्ड, डी मतलब दस्त, पदरजोभिषेकम निष्किंचनानम नवरिनिरय, दस्त फ्रॉम लोटस फीट ऑफ वैष्णवस। भक्तों के चरण का धूल चाहिए। और ब्रज धाम का जो है और मायापुर धाम का परम धाम भगवान का धाम का धूल चाहिए सिर पे। और भक्तों के जो है धूल क्या है, उनका आदेश है। गुरु के चरण का धूल उनका आदेश सिर पे रखना चाहिए। तो अंत में हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, आज अगर हम लोग ये भाव स्वीकार कर लें, जो हम ये कवच लगावे, उनका नाम ओम केशवाय नमः, ओम नमः नमः। प्रभुपाद जी इस कलयुग में बहुत आसानी कवच बना दिया, बहुत ही आसानी बना दिया। कौन सा कवच? इति शुदा शकानम नम कलिकल्माशनाशनम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अनुभव मैं अंत में समय तरह 2 मिनट और लेता हूँ। प्रैक्टिकल बात है, हमारा साथ भी बहुत अनुभव हो गया जीवन में, कहानी हो, क्योंकि हम लोग क्यों इसी आंदोलन में जोड़ दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्यों? कुछ ना कुछ तो अनुभव तो होगा। अन्यथा तो दिखावा किसके लिए करेंगे? दिखावा एक दिन एक आदमी को, हाँ, 2 दिन 2, लेकिन सब समय सबको तो दिखावा थोड़ी करना है। एक बार हमको गुरु महाराज आदेश दे दिया नेपाल जाने का। कहानी बताऊं आपको? प्रैक्टिकल भगवान को देखकर याद आ गया कहानी। उस समय जो है 2002 का काम है, मतलब बाद है। तो हम लोग उसमें गए था, उसमें बहुत खतरा, माओइस्ट बहुत झगड़ा था, युद्ध था, सुना था, जानते होंगे ना। पूरा एकदम हाँ मुर्दाबाद, बहुत युद्ध था, माओइस्ट पूरा एकदम युद्ध था, लोगों को मार देता था, ब्राह्मण लोगों को उड़ा देता था, बस बॉम्ब। उस समय हमको प्रवेश करना था और हम लोग दिल्ली से हम लोग बस में गए था, हमारा अपना बस खरीद लिया हम लोग और दिल्ली से गया मायापुर से हम लोग गया ककरबीता। हाँ, उसमें गोरखपुर ककरबीता जो है बॉर्डर, नहीं गोरखपुर नहीं, ककरबीता बॉर्डर था उसमें बंगाल से। और बाद में जो है गए था, तो हम गए था उसी पहला दिन जो है हमारा बड़ा ट्रक गाड़ी हमको टूक कर दिया, जो है एक्सीडेंट करवा दिया और हमारा बस जो है पूरा पहाड़ से गिर गया। बाप रे बाप, जब पहला बार हमारा बस पलट गया, मैं आगे बैठा था, भगवान की कृपा से बेल्ट लगा हुआ था। जब पहले गाड़ी, तब मैं सोचा, पहला विचार आया, बाप रे नया गाड़ी। भगवान को स्मरण करना आसानी नहीं है, नया गाड़ी है। बक्कर खरीद लिया हम लोग, नारी नया मर्सिडीज बेंज सुपर, 6 ब्रह्मचारी बैठे हैं, पूरा किताब, ठाकुर जी, हारमोनियम, सब कुछ
आप प्रचार करेंगे और माया स्वागत है। और जब उल्टा पलकने लगा तब में से बाप रे बाप सीताराम कृष्णा कृष्णा सब चिल्लाने लगा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बस खत्म .com। गाड़ी उस दिन के बाद में गाड़ी कभी दिखाई नहीं, फेंकना पड़ा गाड़ी। और बाद में हम लोग शुरू किया माइनस में, कोई आदमी 2 पैर टूट गया, कोई ये टूट गया। बाप रे तो खतरनाक चुनौती, अब शुरुआत करना कैसे। धीरे धीरे पहुंच गया और बाद में हम लोग प्रचार किया था तो सारे आतंकवादी आने लगा, हमको चुनौती देने लगा। एक आदमी मेरे पास आ गया बंदूक लेकर के, मेरे को 15 लाख चाहिए, समझा, डॉलर दे दो। मैं सोचा कहाँ से $, मैं तो भिखाम दादा तो मैं प्रधानमंत्री का पुत्र नहीं हूं, मैं बैल मेरा बाप गाय मेरा माता, कुछ नहीं आता। और बाद में वो लोग गया था कहाँ गया था, मंदिर में गया था चुनौती देने के लिए। बोला तुम हमको $, चाहिए, हमको जो है वो थोड़ा अकाउंट दिखाओ आपका। वो हाँ आतंकवादी लोग आया, उसमें एक बहुत बड़ा कराटे क्लब था, कराटे क्लब। वो 40 कराटे शिष्य आ गया उनके साथ, और हमारा ब्रह्मचारी को पिता ही किया। इसलिए हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी को ताकत होना चाहिए। हम ऐसा ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारी के पास आएंगे तब धर्म कैसे सुरक्षा करेंगे आप। इसलिए उड़ गया ब्रह्मचारी। हम लोग बोलते हैं ना ये खेल जो है ना, वो खेल होते हैं ना, कबड्डी 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 कबड्डी, पता है ना, जो सोच लेते हैं कबड्डी 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 तब जा सकते हैं ना, लेकिन उनके पास वो आपका दुश्मन जो उसको खींचने के लिए मौका होगा, लेकिन कबड्डी 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 उसको इधर वापस खींचना पड़ेगा ना। तो वो उसमें जब बाहर जाते हैं बहुत दुश्मन है, बुरा नजर वाला तेरा मुख काला, बहुत सारे होता है उधर। तो इसलिए हमको हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम तो लोग पकड़ लेते हैं और बाद में मंदिर में लेके आना। अगर हमारे पास बिल्कुल एकदम हवा कम है और गया, वो गया बेचारा, प्रेम से गया। लेकिन जब जो है उसके पास बोल हरे कृष्णा हरे हरे, वो गया था पकड़ा, तुम पागल है, पागल, हाँ पागल, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सब लोग मच्छर जैसा पकड़ो पकड़ो, तुम हाँ अब मैं पागल हूं, पकड़ो। हमार गुरु हमार मूर्ख देख को कोरे ऐसा। फिर बैटरी चार्ज हो गया, फिर बाहर जाना है। लेकिन जो सत्संग नहीं करते, भागवतम नहीं सुनते, जाप नहीं करते। मैं बोलता हूँ कहानी, एक भक्त जाप करता था और अंतकाल में जो है वो बैठे बैठे ऐसा करता था, तो एक दवा कौन है दरवाजा खोल दिया, उसमें 3 यमदूत था। जो सो गया वो उसके लिए 3 यमदूत आ गया। भाई दिमाग खराब हो गया, एकदम बहुत भयानक है भाई, क्यों आया। हाँ ये ड्रेस चित्रगुप्त ये ड्रेस दे दिया। तो मेरे पास तिलक है, देखिए तिलक है, जपमाला देखिए, ये मेरे पास है, गुरु महाराज दे दिया मेरे को ये लकड़ी का, देखिए। बोला नहीं नहीं ये तो सही एड्रेस यही है, मेरा नाम स्निक, उसका हिरी और इसका ब्रूम, 3 हम लोग। अब हमको पूरा जीवन पुकार करता था, स्निक स्निक हिरी हिरी ब्रूम ब्रूम, स्निक 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 ब्रूम, स्निक 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 हिरी हिरी ब्रूम ब्रूम, स्निक स्निक हिरी हिरी ब्रूम, स्निक स्निक हिरी हिरी ब्रूम ब्रूम, क्योंकि बहुत जल्दी में था। स्निक स्निक हिरी हिरी ब्रूम, स्निक स्निक हिरी हिरी ब्रूम ब्रूम, स्निक स्निक हिरी हिरी ब्रूम ब्रूम। तो किसका हम लोग पुकार करते हैं? ऐसा नहीं है जो तिलक लगाने से भक्त थोड़ी होता है, हमको हृदय भी लगाना चाहिए। तो उसको जो है ना बहुत सारे भक्ति करता था, लेकिन बाद में चुनौती दिया, ब्रह्मचर्य लोगों को पिटाई करने लगा, कराटे वाले लोग। और इतना हम लोग दूसरा सेंटर खोल दिया डाउन टाउन में भी, हम सेंटर। एक आदमी मेरे को बिजनेस कॉम्प्लेक्स दान दे दिया, 10 रुपये नहीं, बिजनेस कॉम्प्लेक्स। मैं अंतर्राष्ट्रीय भिखारी हूँ ना, मैं आई एम टैक्स कलेक्टर, आई एम नॉट जस्ट बेगर। हमारा पिताजी लक्ष्मीपति है, महालक्ष्मी राधा रानी। हमारा पिताजी गरीब नहीं है, हाँ हम लोग सस्ता कमा रास्ते में नहीं है। हमारा पिताजी पूरा ब्रह्मांड का मालिक है, ऐसा हमको गर्व होना चाहिए। पक्का तिलक, हाँ हरे कृष्णा हो गया, हाँ हरे कृष्णा हो गया हम लोग, ऐसा विश्वास होना चाहिए यार। कलकत्ता में और 2 मीन्स हैं, कलकत्ता में एक कारखाना था, कारखाना।
और शिखर का नाम है सब हिंदू लोग करता था, बंगाली सब लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सब पूरा बोलता था उसको, धोती साड़ी तिलक लगा के। लेकिन मालिक भी हिंदू था। लेकिन एक दिन उसको अंग्रेजी का जमाना था, वो अंग्रेजी लोग मुस्लिम को मालिक को लगा दिया, उसको कहीं दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिया। तो जब मुस्लिम मालिक हो गया तो उन्होंने बोला, है ये कोई मंदिर मस्जिद नहीं है, ये तिलक सिलक न मत लगाना, जो कल से जो तिलक लगाएगा वो मेरा कारखाना में काम नहीं करेगा, फायर हो जाएगा, इधर काम बेरोजगारी होगा उसका। सब तो भयभीत हो गया, भाई अगर तिलक लगाने से जो हमको बेरोजगारी हो जाएगा तो फिर क्या। सब लोग साफ कर दिया, पेन शर्ट लगा दिया, कुछ बिजनेस कपड़ा लगा दिया, पूरा आ गया। तो मुस्लिम मालिक सबको लाइन लगा दिया, लाइन लगा दिया और सबको देख रहे हैं, किसी की पास तिलक नहीं है। केवल एक आदमी स्टोफ का इलाज से आदमी आ गया, इतना बड़ा नया धोती खरीद लिया वृंदावन में, लोई बाजार में नया, वो भी आयरन कर लिया पूरा, और तिलक बिल्कुल विशेष तिलक लगा दिया, 2 गुण बड़ा ऐसा कर दिया। तब उसको जो है मुस्लिम आश्चर्यचकित हो गए, भाई ये कैसे हिम्मत उनका, मेरे सामने ऐसा तिलक लगा दिया, इधर आओ इधर आओ इधर खड़े हो जाओ, सबके सामने खड़े कर दिया उसको। तुम मेरा कारखाना में आज से तिलक लगाओ और धोती लगा सकते हैं, क्योंकि आप पक्का भागता है, सब बाकी नकली है, आप पक्का तुम पक्का भागता है, बाकी सब लफड़ा है। भगवान कभी कभी ऐसा परीक्षा लेते हैं ना, भालो ना बालो मात्र सेवा कोरी सुहृदय निश्चय। तो वो ऐसा हो गया, वो झगड़ा करने लगा, हमको आदमी जो है बिजनेस कॉम्प्लेक्स दे दिया, हमको उसमें विद्यालय खोल दिया युवा लोगों के लिए, उसका नाम वीजा रखा, वीजा। आजकल तो सब लोग विदेश जाते हैं ना, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, गो टू स्टडी टू ऑस्ट्रेलिया टू जापान जाते। और ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या लिखते हैं एयरपोर्ट में, गो टू एंजॉय टू नेपाल, और नेपाल में गो टू ऑस्ट्रेलिया, सबको उल्लू बना रहे हैं इसको, वहां से इधर उधर से। By the way, man is fool. When it's hot, he wants cool. When it's cool, he wants hot. He always wants what is not. हम ऐसा घूमते रहे, घुमा रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं सबको, वहां से इधर उधर से इधर उधर से। कहीं कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन बिना उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी हृदय पार्थसारथी का दास, केवल इसी के है। सब दुखी है, सब माया का पसाल, माया का स्टोर में जो है कस्टमर है ना, कस्टमर सब लोग माया का जो है, माया का जंजाल में कस्टमर हैं। और कस्टमर कौन कौन है मालूम है, जो कष्ट मरते हैं वो कस्टमर है। और सब लोग परेशान हैं, चाहे जीरो चाहे हीरो, सब लोग। इसीलिए भक्तों को जो है गर्व होना चाहिए हमारा पक्का। तो वो लोग आ गया, सताया, बहुत परेशान कर दिया। तो हम लोग को वो वीजा आध्यात्मिक अकेडमी खोल दिया उसमें। तो हम लोग काठमांडू में बैठा था, हमारा मंदिर थोड़ा बुदेलखंड में, थोड़ा आगे, थोड़ा पहाड़ में। तो वो उधर से, तो हम उधर युवा लोगों को भेज दिया, उसका नया अध्यक्ष हो गया। तो मेरे को फोन किया, पत्री प्रभु खतरा भाई, पत्री प्रभु बचाओ, क्या हो गया। वो लोग कराटे वाले लोग आ गया, बहुत पिटाई किया और बोला, कल तुम अगर हमको ये नहीं करोगे, जहाँ हम लोग पैसा नहीं दोगे और हमको पूरा अपना अकाउंट नहीं दोगे, हम मंदिर में तो बम लगाएंगे या तो आग लगाएंगे, बताओ क्या चाहिए तुमको। बहुत सारे मंदिर, बुद्धिस्ट मंदिर क्या क्या उड़ा दिया, बहुत सारे लोगों को मारा। ये कोई मजाक नहीं था, बच्चा का खेल नहीं था, रियल था। क्या क्या हल्ला था, कर्फ्यू 25 दिन कर्फ्यू था। तो बहुत घबरा गया सब लोग, प्रभु जी क्या करें। तो हमारा पास एक भक्ता, हाँ, माधवेंद्र पुरी प्रभु फ्रॉम फ्रांस, हमको एक मूर्ति दे दिया, उग्रेंद्र सिंह है, जो हमारा मायापुर का उग्रेंद्र सिंह है। तो हमको मूर्ति दे दिया छोटा सा, क्योंकि उनको कोई किसी ने परिवार में गिफ्ट दे दिया, विवाह के समय जो है उनको मूर्ति उग्रेंद्र सिंह का दे दिया। 1 साल के बाद उनका डाइवोर्स हो गया। तब उन्होंने बोला, भाई पत्री प्रभु हमारा दोस्त है, पत्री प्रभु आप उसको ले लीजिए ना, कृपया फिर दोबारा विवाह करना, मेरे को ये नहीं चाहिए, घर में रहेंगे तो न रहेगा बस, न बचेगा बांसुरी। बहुत गुस्से में है, आप ले लीजिए, आप घूमते पानी रामते योगी, आप ले लीजिए उसको। मैं ले लिया और काठमांडू में रखा हम लोग। और तब जब ये कतरा हो गया तो मैं बोला, भाई देखो
करूँ क्या? मैं बोला, उसका हमारा भागता था, सुनो एक काम करो, कल प्रभु जी कल आने वाला है, या बम लगाएगा, क्या क्या लीला करेगा पता नहीं। तो बोला तुम एक काम करो, तुम नरसिंह भगवान को पूजा करो, कवच कवच नारायण कवच लगाओ। ओम नमो भगवती श्री महानृसिंहाय दंस्त्राक्रलवदनाय घोररूपया वज्रानखाय ज्वालमलिने मम विघ्नं पचा पचा मम भयं बिंदी बिंदी मम शत्रुन् विद्रावय विद्रावय मम रिष्टन् प्रभञ्जया प्रभञ्जया चता चता हना हना चिन्दी चिन्दी ममाभीष्टं पूरय पूरय मम रक्षा रक्षाहं वत् स्वाहा। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजसे विरविर्भाव वज्रनखा वज्रदंस्त्रा कर्माशयन् रन्दया रन्दया तमो ग्रसा ग्रसा। ओम स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूषमों क्षरहुं। पूरा रात हम लोग पूजा किया था, उसको क्या करे, हे प्रभु हरि बोल, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब प्रेम का मामला सब हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जब कतरा आ जाता है हरि कृष्ण कृष्ण, तुरंत स्निक स्निक हिरी हिरी तुरंत करते हैं लोग, ईमानदार भाव से करते हैं लोग, क्योंकि कोई मजाक थोड़ी है। तो किया, और दूसरा दिन मैं भी चिंतित था पूरा, मैं तो जीबीसी को फोन किया, महाराज देखिए क्या लफड़ा, कुछ होने वाला है, हमको कोई निश्चित नहीं है, चिंतन था। कल सुबह फोन आया, प्रभु जी प्रभु हरि बोल, जिद हो गया हमारा। क्या हुआ बताइए? वो जो बड़ा बड़ा अध्यक्ष था, कराटे वाला मास्टर, जो उनके पास हजारों शिष्य था, वो मंदिर में उनको पता नहीं क्या हुआ, मतलब दूसरा दिन गया था, वो जो दिन जो आने वाला था बम लगाने के लिए, दूसरा दिन उनके पास दर्द थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो हॉस्पिटल में गया था उसको फीलिंग करने के, चेक करने के लिए, उनका हार्ट अटैक हो गया, मर गया। ये तो खतरनाक लोग हैं। उस दिन से कोई परेशान कोई नहीं करते हमको। नृसिंहदेव भगवान की। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वालंतम सार्वतोमुखम नृसिंहम विशनम बाद्रम मृत्युम मृत्युम नमामहम। ये कोई मजाक नहीं है, ये प्रहलाद महाराज का परंपरा है, भूलना मत। प्रहलाद महाराज भी हमारा परंपरा का, नारद मुनि का जो है चेला, उसके लिए भगवान अवतार, एक छोटा सा बालक के लिए भगवान अवतार ले लिया। विचार कीजिए, आश्चर्य की बात है, एक छोटा सा बालक के लिए भगवान स्वयं वैकुंठ से अवतार ले लिया। और वो कहां? कंब से। हिरण्यकशिपु पूछते हैं, कहां तुम्हारा भगवान है? पिताजी अंदंतरस्तम परमाणुचयंतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम। परमाणु माने कहां कहां, इतरा तत्र सर्वत्र मयि पश्यति सर्वत्र। कहां है? ये कंब में है क्या? हाँ पिताजी है। और आचार्य बताते हैं भगवान नृसिंह वास्तव में वो प्रेमंजना चुरित भक्ति विलोचनी, अपना भक्ति से भगवान को देख लिया कंब में। और नृसिंह भगवान उनको ऐसे किया, मैं हूं ना, बोलो उसको, बोलो, ये बेवकूफ पिताजी, बोलो मैं हूं, घबराओ मत, मासू चाह। तो प्रहलाद महाराज ने बोला पिताजी है, दिखाता हूं, तलवार निकाल दिया, जिनका भगवान इसी रूप में, इतना भयानक रूप स्वीकार किया था। देखिए प्रहलाद महाराज केवल जय श्री हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज स्वयं भी आश्चर्यचकित हो गया, भाई कैसे हो गया प्रभु, मैं तो छोटा सा बालक हूं। और सारे बहुत बड़ा देवी देवता, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो च सिद्धः सत्वैकतानकतयो वच संप्रवाहैः नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रूं किं तो सुमर्हसि समे हरिर उग्र जाति। मैं तो उग्र जाति, म्लेच्छ देश से आ गया यार। मेरा पिताजी राक्षस था, शराब पीता था, उनका देवता लोगों को खाता था। मेरा पिताजी था ऐसा राक्षस, मैं उनका पुत्र हूं, हरिर उग्र जाति। और ये ब्रह्मा दया सूरगना मुनयो, सर महात्मा लोग, जीबीसी एबीसी बीबीसी सब लोग जो है, लेकिन आप मेरे लिए आया। इसलिए प्रभु मैं समझ गया, मेरा विचार में मन्ने धना विजना रूप तपा श्रुतौजस, मेरा विचार में जो है अपना सुंदरता से, पैसे से, तपस्या से कुछ प्रभाव करने वाला नहीं है कोई आपके लिए। फिर भक्त्या तुतोषा भगवन गजायुथ पाया। हाथी गजेंद्र बिल्कुल
दाल एलिफेंट, हाथी, जानवर, उनको आपका मोक्ष, उनको आपका धाम मिल गया, उनका कृपा मिल गई। क्या? भक्तिया तुतुष, आपको संतुष्ट बना दिया अपना भक्ति से। और भक्ति से जो है ये बहुत आसानी कलयुग में है। थोड़ा सा सेवा करना, वैष्णव सेवा, नामारुचि और जीव दोया, सबको भगवान के बारे में प्रचार करना, भगवान का नाम लेना, और सबसे श्रेष्ठ कलयुग का कवच वितरण करना सबको। कलौ दोष निधि राजन अस्ति एको महद गुणन कीर्तनदेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजित। बस खत्म, विराम। इसलिए हम लोग अगर 2-3 घंटे कीर्तन किया होता, ये भागवतम क्लास था, ये सार है। क्यों क्यों घुमा 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 घुमा, संपूर्ण सार सो रहा है अभी, क्योंकि अभक्त लोग तत्पर्य देते हैं, इसलिए वो सार उठा ही नहीं अभी तक। लेकिन जब प्रभुपाद जी भक्त, उनका जीवन उनका प्रवचन है, उनका जीवन देख करके हमको सार मिल जाएगा। इसलिए हम लोग आइए, हम लोग भाग्यशाली हैं, उसी सार को लेके GPS पालन करके गुरु परंपरा सिस्टम। आप दूसरा को जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सारे जीव को पकड़ के फिर मंदिर में लेके आना भगवान के चरण में, तब आपको कृपा मिलेगा। क्योंकि भगवान बोला ऐसा व्यक्ति बहुत प्रिय हो जाता है मेरे लिए, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मत् प्रिय कृत्यमः। इसलिए आप भगवान के पार्थसारथी के लिए, श्री श्री राधा पार्थसारथी जी के लिए, गौरनिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के लिए बहुत प्रिय हो जाइए और खुश रहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की थैंक यू। भक्त वृंदा जिंदाबाद जिंदाबाद।